business that could be transacted so far was 4-hour discussion on COVID-19 issues and the hour-long reply by the concerned minister. Since the discussion could take place, the leaders and members could place on record their views and concerns over the management of the pandemic, besides highlighting the shortcomings and suggesting a way forward. There lies the beauty of having such a discussion. Why not more of them in this House? The people at large also appreciated the discussion in Rajya Sabha for the COVID subject is concerned and the manner in which honourable members have spoken, most of them that way. The Minister of Information Technology was scheduled to make a statement on Pegasus spyware issue. I made it clear in the BSc meeting yesterday that thereafter members may seek clarification which would have enabled them to address their concerns in the matter. Even if they are not satisfied on that, there was still scope to discuss, because I have already mentioned it, that leaders and the government, they can sit together if there are further issues and then find a way out and then get back to me. Unfortunately, the proceedings of House hit a new low with the papers being snatched from the minister and torn into pieces and thrown into the air. Such actions are in a clear assault of our parliamentary democracy. They do not cover the world's largest democracy. Please, do not cover the world's largest democracy with glory. Please, should be members of parliament be party to degrading the country's standing in the world stage? It was also agreed that BSc meeting yesterday that this August House will take up a detailed discussion on various aspects including country's economy, at least for 4 hours. See, I have even suggested to the government, please don't sit and then make comments. Please don't test my patience. I am also a human being. I have even suggested to the government and the opposition to sit together and prioritize legislative and other agenda for the remainder of the session. Some opposition leaders have appreciated the session, but to my dismay, these things turn out to be different in the House. The turn of events in the House brings us to the question of what drives the disruption in the Parliament. It is only political grandstanding. I have stressed that on the eve of the session, Parliament is much more than a political institution, given its constitutional mandate. But there seems to be a scant respect for the constitutional sanctity of Parliament. Very, very unfortunate. Honourable members, you are the custodians of our parliamentary democracy. The entire country, including state legislatures, are looking to both the House of Parliament for guidance. And this has been really acknowledged by one and all. The parliamentarians speak for the people and states their represent. Disrupting the House is certainly no way of doing justice for which you are all here. I fervently appeal to all sections of the House to enable smooth functioning of the House by raising above the political considerations. If at all there are many disruptions, only that will halt the march of our nation, besides letting people down. Honourable members, 3 weeks from now, we will be entering the 75th year of our hard-fought independence. The spirit of its celebration should not be marred by dysfunctional Parliament. Our freedom struggle was all for the self-governance with our people as the masters. But what is being witnessed in the Parliament is to contrary. This does not resonate with the movement of 75 years of our freedom from colonial rule. As the chairman of this August House, I am deeply distressed by the course of events in the House. I expect many of you to be equally anguished. If so, we shall find a way out to the present state of affairs. We are anguished, and so are the people. Let the Parliament function smoothly and bring shine to the lives of the people. Whatever you want to say during the course of discussion, you are free to say it, but within the permitted ambit and scope of any issue or discussion. That has to be kept in mind. Papers to be laid. There is a procedure, you know. Sukend, you have been in the chair also, senior also. So papers to be laid on the table. Sri Muralidharan, Parliament Affairs. Papers first. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleagues, Sri Som Prakash ji and Sri Kailash Chaudhary ji, I lay on the table of the House the papers listed against their names and serial numbers 1 and 2 respectively in today's revised list of business. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce, Sri John Bittas. माननीय अध्यक्ष महोदय,
वैक्सीन के लिए और वैक्सीन उपलब्धता के लिए और वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उपस्थित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले आपके माध्यम से सदन को, देश को बताना चाहता हूँ कि देश में कोविड के संदर्भ में, वैक्सीनेशन के संदर्भ में देश में राजनीति ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है और यही विषय को लेके मैं यहाँ रिप्लाई भी दूंगा और राजनीति भी ये विषय पर मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप कोविड क्राइसिस के सामने हम सामूहिक तरीके से लड़ सके, इसके लिए 20 बार 20 टाइम स्टेट गवर्नमेंट के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत किया, चर्चा की और उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें भारत सरकार ने उसको सहयोग करने के लिए समय समय पर कार्य योजना बदली। सबसे पहले विपक्ष के द्वारा या तो कई लोगों के द्वारा या तो कई राज्य के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता था कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और हेल्थ के लिए स्टेट को भी विश्वास में लेना चाहिए और उसको भी कोई अनुमति देनी चाहिए। राज्यों ने कहा कि वैक्सीन हम भी खरीद सकते हैं, हमें भी अनुमति देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य भी खरीदना चाहते हैं तो राज्य भी खरीदे और खरीद के देश को, अल्टीमेटली तो देश के नागरिक को वैक्सीनेशन होना है। और इसलिए मोदी जी ने 1 मई से कहा कि 25% स्टेट खरीदे, 25% प्राइवेट लोग खरीदे और 50% ये भारत सरकार खरीद के देश के नागरिक को टीकाकरण करेगी। और 25% के लिए कई स्टेट ने टेंडर निकाला। हमने कहा कि हम आपको सहयोग करेंगे, देने वाले लिमिटेड थे, भारत सरकार भी बात कर रही थी, लेकिन भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम टेंडर निकालना चाहते हैं। हमने कहा क्या हमारी मदद की आवश्यकता है, मदद करने के लिए तैयार है, आप खरीद सकते हैं, टेंडर निकाल सकते हैं। 2 बात थी सर, एक उस पर राजनीति भी हो सकती थी जो कई लोगों ने की, एक हमारा क्लियर मन था, मोदी जी ने कहा उस विषय पर राजनीति नहीं, जो राज्य खरीदना चाहते हैं हम उसको मदद करेंगे। कई राज्य ने ग्लोबल टेंडर बाहर पड़ा, लेकिन कंपनी निश्चित थी, 2 कंपनी इंडिया की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। मॉडर्ना ने अभी इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, परमिशन दे दी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में बायोलॉजिकल इवेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर लिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम चल रहा है। 2 कंपनी बची थी, बाद में फाइजर के साथ भारत सरकार एक लेवल से बात कर रही है, आज भी कर रही है, तब भी कर रही थी, लेकिन एक कंपनी ने बोल दिया कि हम स्टेट से नहीं, भारत सरकार हमसे बात कर रही है और हम भारत सरकार के साथ आज भी कर रहे हैं। आज भी भारत सरकार का एक एक्सपर्ट ग्रुप उसके साथ बात कर रहा है और कंपनी ने आज आके इंडिया में ऑलरेडी हमने परमिशन दे दिया है। इश्यू ये नहीं है सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इश्यू राजनीति का है। ये मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद है, हर कोई का लक्ष्य है कि देश के 7% 18 एबव नागरिक को वैक्सीनेशन हो, उसके लिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये राजनीति का अवसर नहीं है। लोगों को पता भी था, पता नहीं था ऐसा नहीं। जब इंटरनेशनल और बायलैटरल बात होती है, कंपनी टू कंपनी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे बात होती है, हर संभव हर प्रयास करने के लिए हम आज के दिन में भी कर रहे हैं। आज के दिन में भी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया ने आज प्राप्त कर ली है, अगले दिन में और प्राप्त होनी है और हम लक्ष्य और आगे बढ़ रहे हैं। कृपया, लेकिन भी एक बहुत ओपन फोरम था। बाद में फिर मुख्यमंत्री श्रीओ की मीटिंग में एक विषय निकला कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो भारत सरकार को ये 25% प्रोक्योर करके हमें देनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, 21 जुलाई को नई पॉलिसी लाया कि भाई हम देश के सभी नागरिक को फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। ये भी सभी राज्यों को कहने से लाया और 25% स्टेट को लेना था, वो ले नहीं पाए।
भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का अभियान देश के 100% नागरिक को वैक्सीनेशन हो, इसके लिए मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, मेरा आग्रह है हम सब लोग साथ में मिलकर वैक्सीनेशन में सहयोग करें। हम सब लोग साथ में मिलकर जहां वैक्सीनेशन केंद्र चालू हो, टीकाकरण चालू हो, वहां जाए, उसको प्रोत्साहित करें। हम सब लोग साथ में मिलकर जो भ्रम फैला रहे हैं उसको रिप्लाई करें। हम सब लोग साथ में मिलके जो लोग टीका नहीं लगा रहे हैं उसके इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को मिले, वो टीकाकरण करे, टीका लगाए और देश में मोदी जी के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन के अभियान के साथ जुड़े। माननीय सदस्य लास्ट क्वेश्चन। महोदय, मंत्री जी ने विस्तार से पूरी इंफॉर्मेशन अभी दी, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्थिति आपने बताई वो स्थिति मुंबई में नहीं है। मुंबई में अभी भी वैक्सीन के शॉर्टेज है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ग्लोबल टेंडर निकाला, उसको रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि केंद्र सरकार से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट न मिलने की वजह से आपने अभी बताया मॉडर्ना हो, फाइजर हो, सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी क्या? मुंबई के लिए अभी भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड का जो सप्लाई मिलना चाहिए वो सप्लाई न मिलने की वजह से मुंबई में जितने भी वैक्सीन सेंटर है 3 दिन से बंद है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, माननीय सदस्यगण, पूरा कोविशील्ड का देश सप्लाई मुंबई को मिलना चाहिए और मॉडर्ना हो या जितने भी ग्लोबल टेंडर को जो मुंबई को सपोर्ट मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार से मिलना चाहिए। और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये ग्लोबल टेंडर